بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ریاست مخالف مواد کی اشاعت پر 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کا آفیشیل یوٹیوب چینل بلاک کر دیا گیا۔ عدالت کا عمران ریاض، آفتاب اقبال، صابر شاکر، وجاہت سعید، احمد نورانی، معید پیرزادہ، مخدوم شہاب الدین، عوریہ مقبول جان، اسد طور، صدیق جان سمیت 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ریاست مخالف مواد کی اشاعت پر 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے کی درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا۔ یوٹیوب چینلز پر موجود مواد ریاستی اداروں کے خلاف تھا۔ عدالت کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یوٹیوب کے متعلقہ انچارج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان تمام چینلز کو فوری طور پر بلاک کریں۔ ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری کا آغاز کیا تھا اور عدالت کو شواہد پیش کیے، جس پر عدالت کی جانب سے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حوالہ ہنڈا مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ مزید تفصیلات عبید شاہ کی اس رپورٹ میں۔ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، وزیر داخلہ کا حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کراچی ساؤتھ زون آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بھکاری مافیا کے خلاف بھی سخت ایکشن کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، مفرور ایجنٹس کو ہر صورت گرفتار کیا جائے۔ محسن نقوی نے جعلی ادویات کے مکروہ دھندے پر بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس کاروبار میں ملوث افراد کی جگہ صرف جیل ہے، ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نان کسٹم پیڈ مصنوعات کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کا حکم دیا اور 5000 سے زائد ڈالر لے کر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ عبید شاہ، نیو نیوز، کراچی۔ اور اب آپ کو بتائیں، وفاقی کابینہ نے ملک میں چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کی موجودہ صورتحال اور فراہمی کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی اور تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ اقدام چینی کی قیمتوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وزارت غذائی تحفظ نے واضح کیا کہ اس بار درآمد کا طریقہ کار ماضی کی حکومتوں سے مختلف اور بہتر ہے، جہاں اکثر مصنوعی قلت پیدا کر کے سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی کی دستیابی اور عوامی مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا اور قیمتوں کا استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں وزیر خوراک، سیکریٹری خوراک، وزارت صنعت و پیداوار اور شوگر انڈسٹری کے نمائندے بھی شریک تھے۔ لاہور میں چینی کی قیمت 190 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے چینی جیسی بنیادی ضرورت کی قیمت میں اضافہ عوام پر مزید بوجھ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے طیب بیگ سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، غریب عوام جو ہے وہ پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان پہ پہنچی ہے۔ اسی دوران پھر سے جو ہے وہ چینی کی قیمت میں حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا اور جو ہے وہ چینی کی اس ٹائم قیمت 190 پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کریں۔ ہر چیز مہنگی ہوئی جا رہی ہے، اب اوپر سے چینی مہنگی کر دیں گے۔ ایک بیسک چیز ہے، ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے، جیسے موسم کی شدت کی وجہ سے شربت وغیرہ پینے کے لیے ہر بندے کو چینی چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کا بھی ریٹ بڑھا دیں گے تو ظاہر ہے غریب کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ جو چینی ہے وہ روزمرہ کی اشیاء میں جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اس لیے حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کی قیمت کو کم سے کم سطح پہ لے کے آنا چاہیے تاکہ جو غریب عوام پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہے اس کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی ٹھیک ہے طیب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پشاور میں بھی چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مقامی مارکیٹ میں چینی 200 سے 210 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں فی کلو چینی 15 سے 20 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں پشاور میں نیو نیوز کے بیورو چیف لحاظ علی سے۔ لحاظ علی، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں۔ تقریباً 5 دن قبل فی کلو چینی پشاور کی اسی مارکیٹ میں جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، وہاں پر چینی فی کلو 180 روپے سے لے کر 185 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی۔ آج اس کی قیمت 200 روپے فی کلو ہے۔ مقامی دکانداروں کے مطابق 50 کلو کا جو بوری ہے جو چینی کی، اس کی قیمت پہلے تقریباً 8300 سے لے کر 8400 تک تھی اور اس وقت اس کی قیمت
9,000 रुपए से भी तजावज़ कर गया है। अगरचि ज़िला इंतज़ामिया ने कोई क्रैकडाउन शुरू नहीं किया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के इंतज़ामिया वहाँ पर जो ऑफिसर है उनके मुताबिक अनकरीब जो है वो जो चीनी की मुनाफाखोर है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पेशावर में इसकी कीमत 200 से लेकर और जो गिरदोनव है वहाँ पर इसकी कीमत 210 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है। लिहाज अली हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सानिया लियारी के हवाले से। गवर्नर सिंध का सानिया लियारी के बेघर मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं बेघर मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया एडवांस देकर रिहाइश देगा। डीजी SPCA का ओहदा से हटाना अच्छा फैसला है। SPCA का पूरा निज़ाम बदलना होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। नबील कबूल सईद गनी ने अच्छी बातें की। वज़ीर आला का तहकीकाती कमेटी बनाना अच्छा इक़दाम है। लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। मुतासरीन को रिक्शे देने का भी वादा किया गया। कहा सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में कोई तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया है। डीजी SPCA जिन्होंने चार्ज लिया है उनसे कहूँगा कि जिस की बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्जामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्जामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का कयाम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहे। जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है, मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करें। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इसमें हम बात हुई है वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है और हम एहतराम करते हैं अपनी अक़लियतों का और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। लियारी लोग हैं यहाँ के, वो अपने आप को अकेला ना समझे, उनका ये भाई, ये उनका अवामी गवर्नर मौजूद है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। मुझे खुशी हुई कि नबील कबूल साहब ने भी अच्छी बात की, मैं रात सुन रहा था सईद गनी साहब ने भी अच्छी बात की, CM साहब ने कमेटी बनाई है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका मखदूश इमारतों को मस्मार करने का काम शुरू। रिहायशी सामान निकाल कर ले गए। SPCA का कहना है कि इमारत के मकीनों को सामान निकालने का वक्त दिया गया है। जैसे ही मुतासरीन सामान निकाल लेंगे तो इमारत तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मजीद बता रही हैं सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। सानिया बगदादी के बाद जो फटानी मेंशन है उसका ब्लॉक A भी अब तोड़ा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस इमारत को खाली करवा लिया गया है। इसके मकीन को आज 2 बजे तक का वक्त दिया था कि वो अपनी ज़रूरी सामान यहाँ से निकाल लें। इस वक्त जो इस इमारत के मकीन हैं वो यहाँ से अपना सामान निकाल के अपने असीज़ व अकारिब के घर जो है वो मुंतकिल हो गए हैं और मकीनों का यही कहना है कि ये हमारे घर थे जो हमने ख़रीदे थे और हमें हुकूमत से हम अपील करते हैं कि इसके बदले हमें कोई घर दिया जाए। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कामरान खान टिसोरी ने आज इस जगह का दौरा किया और उनका कहना ये था कि जितने भी इस इमारत के मुतासरीन हैं उनको 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। जो मखदूश इमारतें हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाक़या बगदादी के बाद जो है वो हरकत में आ गई है और इन मखदूश इमारतों को सील कर रही है। आज जो है दरियाबाद के इलाके गली नंबर 6 में 2 इमारतों को सील कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमैया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। तहकीकाती कमेटी इमारत गिरने की वजूहात पर 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी, जबकि मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज़ किया जाएगा। तहकीकाती कमेटी में कमिश्नर कराची, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद, डायरेक्टर कंप्लेंट डेंजरस बिल्डिंग कमेटी SPCA नदीम अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसिफ अली लांगा और दीगर ऑफिसर शामिल हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलें। बलोचिस्तान में तकरीबी हल्फ बर्दारी जारी है और चीफ जस्टिस रोज़ी खान हल्फ ले रहे हैं।
पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा ये के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया बलूचिस्तान मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा ये कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मरवजा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा ये कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। आपको बताते चलें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदों पर लाजिम है। अपोजिशन ने आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ा। अपोजिशन के अरकान को आइन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया। किसी को भी ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हर सियासी जमात वज़ीर ख़जाना की तकरीर में हमेशा किताबें फाड़ कर फेंकती है। दौरान तकरीर स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। अपोजिशन के इस तरह के बेवकूफ़ाना अमल को रोकना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। जो पासदारी का हल्फ था वो तोड़ दिया गया है और कैसे तोड़ा गया है, विलफुली obstruct करके। कोई वजीर खजाना यहाँ पर तकरीर नहीं कर सके। टुडे इफ देयर इज अ केस इन फ्रंट ऑफ मी, आई थिंक इट इज अ जस्टिसेबल पोजीशन। इस पे फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। तो जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि स्पीकर का कंडक्ट क्या होगा, तो जो राउडी होंगे, जो वल्गर होंगे, जो असेंबली के अंदर खड़े होकर गालियां दे रहे होंगे, उनको सस्पेंड करना मुझे रूल्स परमिट करते हैं। उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है अगर ये हुकूमत और ऑपोजिशन बैठे, मैं इनको बिठाने को तैयार हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, लेकिन जिनसे बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बात हो। बानी से मुलाकात में हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर बात करूंगा। अभी तक किसी किस्म का कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहा। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। मौलाना साहब से हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हुई। के बाद भी कंसर्न बड़ा रहता है जब खान साहब को आइसोलेट किया जाता है, जब अखबार नहीं मिलता, जब टीवी पे नहीं मिलता ऐसे बड़े लीडरों को, तो ये सब मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न। और अब आपको बताएं पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुनने का हुक्म भी दे दिया। आपको बताते चले पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे पेशावर में हमारे नुमाइंदे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। लिहाज अली, बताइएगा क्या मामला है? सिद्रा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा की 25 मखसूस नशस्तें हैं, जिनमें से 4 अक़लियत के 21 ख़वातीन की है। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दी थी कि JY को 10 और हमें 8 नशस्तें मिली हैं। हालांकि हमारी तादाद भी 7 है और JY की तादाद भी 7 है, इसलिए री एलोकेशन की जाए।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है उसे कलअदम करार दे दिया है, रीलोकेशन के अहकाम जारी कर दिया और साथ ही ये भी बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर तमाम सियासी जमातों को सुनकर एक नया लिस्ट मुरतब करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमें अपडेट कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया जाए। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती को खत लिख दिया। मतन में कहा, सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे, नए अरकान को वोट डालने के लिए हल्फ जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों की रोशनी में इजलास बुलाया जाए। पीडीएमए ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में मखदूश बोसीदा इमारत गिरने से एक बच्चा दम तोड़ गया। किल्लर सईदा में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। मानसून बारिशों के बायस 3 मखदूश और कच्चे मकानात मुतासिर हुए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं धूप और कहीं बादल बरस पड़े। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। मजीद तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह से इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर आबरालूद है। इस वक्त मौजूद इस्लामाबाद के 7 सेक्टर में यहाँ पर इस वक्त तो धूप निकली हुई है, हब्स फील हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में जो मानसून है, मानसून की खूबसूरती यही है कि एक सेक्टर में बारिश हो रही होती है, दूसरे सेक्टर में धूप निकली होती है। तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में इस वक्त जो है वो कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी और कहीं जो है वो धूप निकली हुई है। जिसके साथ ही जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ पर गर्मी का जोर टूट गया है। तमाम जिन इलाकों में इस वक्त मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, वहाँ पर अब भी हब्स बरकरार है, गर्मी का राज बरकरार है। आज दिन के औकात में इस्लामाबाद में ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। 10 जुलाई तक महकमा मौसमियात ने मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने की पेशगोई की है। जी, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वज़रा, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वकला और रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला ने जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठाने के बाद मज़ार कायद हाज़िरी दी। बाबा कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी भी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। हल्फ बर्दारी के मौके पर सिंध हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी मौजूद थे, जबकि बार एसोसिएशन और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस जुनैद गफ्फार की बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस तकर्रुरी की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठाने के बाद मज़ार कायद हाजिरी दी, बाबा कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 14 सितंबर 1963 को पैदा हुए। 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की और 2013 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 2015 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर मुस्तकिल जज तैनात हुए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 13 सितंबर 2025 को रिटायर्ड होंगे। कैमरामैन बाकिर रजा के साथ वक्कास खान, न्यू न्यूज, कराची। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, हाईकोर्ट के जजेस, वफाकी वज़ीर सेफरान अमीर मुकाम, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, IG जुल्फ़कार अहमद, कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद समेत वकला रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला ने ओहदा संभालने पर जस्टिस एसएम अतीक शाह को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या इब्राहिम माहिदे की तरफ बढ़ना रेड लाइन है। इसराइल को तस्लीम करने पर पाकिस्तानी कौम खामोश नहीं बैठेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल एक दहशतगर्द रियासत
امریکہ کا کردار منافقانہ ہے، اسرائیل ایران سے شکست کھانے کے بعد میدان سے بھاگا، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اسرائیل کی طرف اس کو تسلیم کرنے کی طرف یا ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بننے کی طرف اگر اس حکمران طبقے نے پیش رفت کی تو پوری پاکستانی قوم مزاحمت کرے گی، اور میں جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس مزاحمت کو لیڈ کرنے میں اعزاز سمجھتی ہے اپنے لیے دنیا اور آخرت کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔